डिप्लोमेटिक इनक्लेव के साथ मैं हूं बीनिश। इस्लामाबाद सफारतकारों का शहर है। इस सेगमेंट में आपको बताएंगे कि हफ्ते भर वफाकी दारुल हुकूमत में सफारती हलकों में क्या सरगर्मियां रहीं। आज के सेगमेंट में शामिल करेंगे जापानी कैलेंडर्स क्यों दुनिया भर में मशहूर हैं। मिस्र में इनकलाब से कौन वाकिफ नहीं, लेकिन क्या पाकिस्तान में गैस और बिजली जैसे मसाइल से तंग पाकिस्तानी अवाम इनकलाब ला सकेंगे। भारतीय रुकन पार्लियामेंट क्यों हामी है पाक भारत तिजारत के, और सफारती महाज पर किस तरह दिफा किया दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान का। ये सब कुछ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, लेकिन सबसे पहले सफारती चटपट। Today we have Saeed Hindam, the ambassador of Egypt, on the occasion of the first anniversary of Egyptian Revolution. We want to know that how you managed during this strict laws and strict regime to have such a successful revolution. Well, in fact, nobody could ever stop the population when it goes for a very eminent uprising. It was very obvious that the people were having their enough. They could not stand it anymore. They could not take all the attacks, all the misperception, all the wrong issues trying to force on us. And it was a very important revolution of expression. People found out that they have the right to express themselves, to get everybody along, to force the government to do what the people want the government to do. So how far your people are satisfied in gaining the objectives of the revolution, and what are the priorities of the new government? Well, we have to know that no objective of a revolution is met after a few days. We've been only 1 year. There is no revolution in the world who yielded all its results in such a short period of time. But I can tell you that we are on the right path. Now, 2 days ago, we had the first sitting of the parliament, the new parliament of Egypt, the real parliament representing Egypt. So this is already a new beginning. Now you have a voice of the people. For attaining the objectives, we should not rush things. It's going to come. The current objectives of the ongoing government, which is an interim government till June, is first and a priori the economy and the social welfare. How do you see Pakistan-Egypt relationship after this revolution? I can really say that we are going to see a very good and new dawn of expression between Egypt and Pakistan. Egypt and Pakistan have held very good relation. Today I can tell you that with the new dawn of the revolution, we are more open and we are really willing to go further. Thank you very much. This was Mr. Saeed Hindam, the ambassador of Egypt. Thank you very much. जापानी कैलेंडर्स में हकीकत से करीब तरीन खूबसूरत बागों और फूलों की तस्वीर काफ़ी मशहूर हैं। इस हवाले से मुनक्किद हुई इस्लामाबाद में एक नुमाइश, आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में जापान के कैलेंडर्स को उनके मुनफरिद अंदाज से जाना जाता है। इन कैलेंडर्स को पाकिस्तान के अवाम से मुतारफ कराने के लिए जापान के सफारत खाने की तरफ से रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश की गई। जापान के कैलेंडर्स में जापानियों के रहन सहन के तरीके, रस्म व रवाज और जापान के कुदरती हुस्न को उजागर किया जाता है। इन कैलेंडर्स में जापान के रवायती मलबूसात, फूल पौधे, जापान के मुख्तलिफ शहर, गाड़ियों की सनत और जापानियों की ज़िंदगी से मुताल्लिक तस्वीर शाया की गई हैं। एवरी कैलेंडर जो है उसकी अपने अपने यूनिक टेस्ट है। मुझे इतना नहीं अंदाज़ा था कि कैलेंडर्स पे इतनी मेहनत होती है। एक छोटी सी एक सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने उसे एक्सपेंड किया ऑन ए बिग पोर्ट्रेट, और वो मार्वलस लुक दे रही है। इस मौके पर हमने जापान के सफीर से भी बातचीत की। You have been living in Islamabad from last 9 months. How have you found Pakistani people and your experience? Very fortunately, I had a very wonderful life here, because I'm very happy to see that so Pakistani people is so kind and sympathetic to Japanese people, and Japan is very well received in this country. Japanese calendars are known worldwide. Tell us something about Japanese calendars. Yeah, and actually it is, even for myself, this is the first time that I see so many Japanese calendars here. But that's a very variety of calendars which range from the Japanese sceneries and the Japanese traditional culture, like ikebana or bonsai, and that's really good. Thank you so much for talking with us. इस नुमाइश में 140 कैलेंडर्स रखे गए, जिन्हें नुमाइश में मौजूद अफराद को कुरानदाजी के जरिए बांट दिया गया। भारतीय रुकन पार्लियामेंट मनीष शंकर ने कहा है कि वो जल्द ही भारतीय वजीर तिजारत से सिफारिश करेंगे कि पाकिस्तान के साथ तिजारत कर ही लें। आइए देखते हैं उनके साथ एक इंटरव्यू। ट्रेडिशनली पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक टेंशन है, स्ट्रेस है, दुश्मन कह सकते हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशनल रहे हैं। आपकी क्या परसेप्शन आई हुई पाकिस्तान यहाँ आके, यहाँ लोगों से मिलके, यहाँ के लोगों के साथ काम करके? हाँ, तकरीबन 33 साल से मेरा रिश्ता है पाकिस्तान के साथ।
3 साल में यहाँ रहा हूँ और पिछले 30 साल में मैं कम से कम 30 मरतबा यहाँ पाकिस्तान आकर गया हुआ हूँगा। और मुझे लगता है कि कभी पहले हमारे तवारीख़ में 1947 से ऐसा एक संदर्भ नहीं आया है, एक ऐसा मौका नहीं आया है जो कि आज हमारे सामने है, जबकि दोनों ममालिक के जो आवाम हैं वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, और हुकूमतों को भी मेरे ख्याल में एक किस्म का भरोसा हो गया है कि यदि वो आगे बढ़े तो उनकी आवाम उनके साथ रहेगी। अब वापस भारतीय हुकूमत को जाके सबसे अहम पैगाम क्या देंगे? हम भारत के जो तिजारत के वज़ीर हैं आनंद शर्मा जी, हम उनसे तो जल्द मिलने वाले हैं, क्योंकि उनका यहाँ पाकिस्तान का सफ़र है फरवरी महीने में। आज से 1 महीने के अंदर वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद घूम रहे हैं, और हमारी जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को हम उनके सामने रखेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनके आने तक वो कम से कम 80-70% फ़ीसदी जो हमारे सिफारिशें हैं उनको मानकर उसके बारे में वो ऐलान करें जबकि वो यहाँ आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आप देखते हैं कि सफारती महाज पे किस तरह दिफा किया दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान का। सफारती महाज पर रवां हफ्ते नुमायां सरगर्मियां देखने में आईं। वज़ीर खारजा हिना रबानी खर ने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की। इस मौके पर अस्करी हुकाम भी मौजूद थे। मुलाकात में दीगर उमूर के अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर खारजा हिना रबानी खर ने पार्लिमानी कमेटी और सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में तय किया गया कि अफगानिस्तान से करीबी ताल्लुकात के लिए वज़ीर खारजा जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेंगी। रवां हफ्ते पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम तरीन ममालिक अमरीका और भारत के सफीरों ने वज़ीर खारजा हिना रबानी खर से अलग अलग मुलाकातें की। अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर की हिना रबानी खर से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई और नेटो सप्लाई की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि भारतीय सफीर शरद सब्रवाल की वज़ीर खारजा से मुलाकात में पाक भारत जामे मुज़ाकरात और वज़राए तिजारत की आइंदा माह मुजवज़ा मुलाकात पर बातचीत की गई। दूसरी तरफ हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा अब्दुल बासित ने कहा कि पाक ईरान गैस मंसूबा अमरीकी पाबंदियों की जद में नहीं आता, ताहम इन पाबंदियों का जायजा ले रहे हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुख्तलिफ सवालों के जवाब में तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की पाबंदियों की सूरत में इनका एहतराम पाकिस्तान पर लाजिम होगा। पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि 2014 के बाद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए तमाम फरीकों से मुशावरती अमल जारी है। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात में तातुल के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि सफारती सतह पर दोनों मुल्क एक दूसरे से राब्ते में हैं, ताहम सियासी क़यादत के राब्ते पार्लिमानी अमल की तकमील के बाद होंगे। नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपको बताया करेंगे इस्लामाबाद में सफारती हलकों में होने वाली अहम सरगर्मियाँ, लेकिन साथ साथ शामिल करेंगे दिलचस्प और गर्मा गर्म रिपोर्ट्स। अब लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।